Hello student and welcome to this third lecture on the topic electrochemistry. In the first two lectures, we have already covered types of electrochemical cells and we also looked at construction and working of galvanic cell. Now in this particular lecture, we will take forward the discussion on galvanic cell and specifically look at what electrode potential is. And then we will look at EMF of the cell, the factors on which EMF of the cell depends upon, and also look at a few problems related to electrode potential. So let's start with topic electrode potential. Now, what is electrode potential? Now we all know that separation of charge causes potential difference to develop. Now, in a galvanic cell, there is separation of charge between electrode and electrolyte interface. Right? There is a separation of charge between electrode and electrolyte at their interface. And this potential difference at equilibrium is known as electrode potential. तो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटरफेस है वहां पर सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है and which causes a potential difference to develop, और ये potential difference at point of equilibrium is known as electrode potential. Let's look at the working of galvanic cell again to understand this concept of electrode potential. Now let's look at one of the half cells of a galvanic cell. Now here we are looking at oxidation half cell. Again we take the example of Daniell cell and we saw that in a Daniell cell, in oxidation half cell, Zn2 plus ion continuously dissolve into the electrolyte from the electrode. इलेक्ट्रोड में से जिंक एटम डिसॉल्व होकर Zn2 plus ion के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होता है. Now as a result of which ये जो इलेक्ट्रोड है this develops negative charge, right? So this much we saw in our last lecture कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मेटल डिसॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर in the form of its cations. तो Daniell सेल के अंदर Zn2 plus ion gets dissolved into the electrolyte. तो इससे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोड है उसके चारों तरफ ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो इलेक्ट्रोड है वहां पर नेगेटिव चार्ज है. राइट, ये नेगेटिव चार्ज है. सो क्लियरली जो बाउंड्री है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच की वहां पर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है. राइट, तो ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है this causes a potential difference. भाई potential difference होता क्या है? It is the separation of charge. So this separation of charge results in a potential difference to develop between electrode and electrolyte. And this potential difference is known as electrode potential. Clear है? Now, ये जो हमने एग्जांपल लिया था इसमें अंडरलाइंग रिएक्शन क्या था? This was the underlying reaction. Zinc is getting converted into Zn2 plus and these two electrons were being left behind on the electrode. ये दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर रह रहे थे और Zn2 plus इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा था. Now clearly this is an example of oxidation reaction. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव कैटायन बना रहा है. So this is oxidation reaction. So therefore this potential difference which is getting developed between electrode and electrolyte in oxidation half cell is called oxidation potential. Oxidation potential इसलिए बोल रहे हैं कि this is because of oxidation. तो oxidation half cell में जो potential difference develop हो रहा है that is known as oxidation potential. Now let's look at what's happening in the reduction half cell. रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा था? Cu2 plus ions सॉल्यूशन में से
निकल के इलेक्ट्रोड पे जाकर न्यूट्रलाइज हो रहे थे, राइट। Cg2+ आयंस इलेक्ट्रोलाइट से निकल के इलेक्ट्रोड पे जाकर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस इलेक्ट्रोड वाज डेवलपिंग अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों? बिकॉज Cg2+ आयन ने इलेक्ट्रोड के ऊपर से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे और न्यूट्रलाइज हुआ। सो द इलेक्ट्रोड डेवलप पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके चारों तरफ क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अगर हम इंटरफेस देखें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां पर नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज अगेन कॉजेस अ पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस के अंदर जो अंडरलाइंग रिएक्शन है वो एक रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन है कि नहीं है? तो क्या हो रहा है? हमें जो Cu2+ है, this is accepting 2 electrons and getting converted into Cu. So gain of electron is reduction. So underlying reaction is a reduction reaction. Therefore this electrode potential is known as reduction potential. Clear है? तो जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में या एनोड में होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है, और जो रिडक्शन हाफ सेल के अंदर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है, उसको हम जनरली रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्लियर है? नाउ अब ये रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर हम दोनों के टर्म्स में बात करें तो लाइफ बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग। एवरी टाइम वी स्पेसिफाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी विल हैव टू स्पेसिफाई कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। देयरफॉर इट वाज एग्रीड लॉन्ग बैक दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वुड मीन रिडक्शन पोटेंशियल। सो कन्वेंशन क्या है कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन हो रहा है तो उसका मतलब है द पोटेंशियल विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज द रिडक्शन पोटेंशियल एंड नॉट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हो तो दैट विल मीन रिडक्शन पोटेंशियल। और एक और चीज याद रखो, जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, बट साइन अपोजिट रहेगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहती है, साइन अपोजिट रहता है। एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन it has been agreed that whenever electrode potential is used we will use reduction potential। ठीक है? तो अब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में बात ही नहीं करेंगे, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ही स्पेसिफाई किया जाएगा हर जगह। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंपैक्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं जिंक का इलेक्ट्रोड यूज करता हूं और जिंक सल्फेट लेड से इलेक्ट्रोलाइट है, विज़ कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करता हूं, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, विज़ सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज करता हूं और सिल्वर नाइट्रेट लेड से इलेक्ट्रोलाइट है, तीनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट होंगे बिकॉज अंडरलाइंग इलेक्ट्रोड या अंडरलाइंग मेटल डिफरेंट है, राइट? तो ये क्लियर है कि अगर हम मेटल डिफरेंट यूज करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट होगा। नाउ अगर हम सेम मेटल यूज करते हैं, सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल इंपैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मैंने सेल के अंदर लिया है, हाफ सेल में लिया है,
उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को जैसे 2 मोलर कर देता हूं, 3 मोलर कर देता हूं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज होगी। तो जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चेंज करूंगा इलेक्ट्रोलाइट की, अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग, राइट। सो concentration of electrolyte determines the electrode potential. That is first point. And second point is temperature. Temperature also has an impact on the value of electrode potential. तो जब हम सेम मेटल सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड चेंजिंग टेम्परेचर विल चेंज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। So, up till now, we have seen what is electrode potential, why it arises, and what are the factors on which electrode potential depends upon. Now, because electrode potential is different at different temperature and different concentration, therefore again, it will be very confusing and very cumbersome when we are specifying electrode potential. Every time we will have to specify the temperature and the कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो हमें टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफाई करना होगा। नाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अ स्टैंडर्ड वाज एग्रीड अपॉन, राइट, एंड इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड एट दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, वी कॉल दैट एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. So basically, what is the standard electrode potential? Electrode potential measured at 298 Kelvin when concentration of all the species involved is taken as unity. तो हमने क्या किया, दोनों फैक्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंपैक्ट कर रहे थे, दोनों को फ्रीज कर दिया। टेम्परेचर को फ्रीज कर दिया 298 केल्विन पे, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे, या रूम टेम्परेचर बोल दो, और कॉन्सेंट्रेशन को फ्रीज कर दिया एट यूनिटी। तो अगर मेरे सॉल्यूशन के फॉर्म में है इलेक्ट्रोलाइट तो कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलर, और अगर गैसियस फॉर्म के अंदर है, जो कि कई इलेक्ट्रोड्स कई सेल्स के अंदर गैसियस फॉर्म में भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है, सो इन दैट केस द प्रेशर ऑफ द गैस इज टेकन एज 1 bar, right? So if I measure electrode potential at a temperature of 298 Kelvin and concentration of all the species involved at unity, that electrode potential is called standard electrode potential. Clear है कि standard electrode potential क्या होता है? Great. Now we will come to EMF of the cell. EMF आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक पर्टिकुलर हाफ सेल का है, राइट। तो अगर मेरे 2 हाफ सेल हैं, किसी भी गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होंगे, तो दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। जब मैं EMF की बात करता हूं तो EMF इज अ सिंगल क्वांटिटी और अ सिंगल वैल्यू फॉर द एंटायर सेल. And what is EMF of the cell? EMF of the cell is defined as the potential difference between the electrode potentials of the 2 electrodes when no current is being drawn from the cell. मेरे 2 हाफ सेल हैं, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, उन दोनों के डिफरेंस को मैं बोलता हूं सेल पोटेंशियल, राइट। क्या बोलता हूं उनको? सेल पोटेंशियल। और ये सेल पोटेंशियल अगर मैं मेजर करता हूं at a condition where no current is being drawn from the cell, तो उस सेल पोटेंशियल को हम बोल देते हैं EMF, ठीक है। तो EMF is basically difference in electrode potential of 2 half cells, right? और फिर मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया था कि जब भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करता हूं दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफरेंस को क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। और जब ये सेल पोटेंशियल मेजर किया जाता है
in a condition where no current is being drawn from the cell, तो इस सेल पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू सेल पोटेंशियल की को हम EMF बोलते हैं. Therefore, even in the first definition, we have clearly specified when no current is being drawn from the cell. ठीक है, जब करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम सेल से तो उस सेल पोटेंशियल को हम EMF नहीं बोलेंगे, वो EMF से कम होगा. क्लियर है? तो EMF इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल. अब कन्वेंशन क्या है भाई? EMF ऑफ द सेल क्या होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड ऑफ टू हाफ सेल. एक हाफ सेल कैथोड होता है, दूसरा हाफ सेल एनोड होता है. तो जो EMF ऑफ द सेल होता है उसके अंदर एज पर कन्वेंशन आई नीड टू सब्ट्रैक्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, सॉरी, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड फ्रॉम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. यानी EMF ऑफ द सेल इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EMF ऑफ द सेल एज E राइट माइनस E लेफ्ट. क्या लिख सकते हैं? E राइट माइनस E लेफ्ट. तो बेसिकली ये अलग डेफिनेशन होगा. इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, E राइट माइनस E लेफ्ट. काफी बुक्स में EMF ऑफ द सेल का फॉर्मूला इस फॉर्म में दिया होगा. बोथ आर सेम. सेम क्यों? क्योंकि हमने जब गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तब हमने बोला था एज पर कन्वेंशन एनोड इज रिप्रेजेंटेड और शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड इज ऑन द राइट हैंड साइड. तो E राइट का मतलब हो गया E कैथोड और E लेफ्ट स्टैंड कर रहा है E एनोड के लिए. तो दोनों से किसी भी फॉर्म के अंदर बुक्स में दिया रहता है, दोनों both the form means the one and the same thing, right? So this is what EMF of the cell is. Again summarize कर देता हूं. EMF of the cell इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है of the two half cells of the galvanic cell. As per convention, EMF of the cell is equal to E cathode minus E anode, and it is equal to maximum cell potential. Clear? And always remember that now when I am talking about electrode potential, it means reduction potential. Okay? Now let's look ahead. Physics में हमने पढ़ा हुआ है कि it is not possible to measure electric potential. Right? तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते तो हाउ आर वी एबल टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अभी मैं आपको पूरी टेबल शो करूंगा जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट रिएक्शंस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं. तो अगर हम पोटेंशियल को मेजर ही नहीं कर सकते तो हाउ हैव वी बीन एबल टू मेजर दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? राइट? व्हाट वी कैन मेजर इज difference in potential or potential difference can be measured. Potential difference को हम measure कर सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में potential difference को measure कर सकते हैं, पर उनका absolute potential की वैल्यू हम measure नहीं कर सकते. और potential difference हम measure करते हैं generally using a voltmeter. ठीक? So this is the question which we need to answer. कि if we cannot measure electrode potential, how have we been able to assign electrode potential to various metals? अब इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं हम लोग, राइट? So to understand how do we measure electrode potential, we need to look at something known as standard hydrogen electrode. ठीक है? तो हमें समझना होगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है. इट्स लाइक एन इलेक्ट्रोड, जैसा हमारा जिंक इलेक्ट्रोड था डिप्ड इन अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. सिमिलरली देयर इज एन इलेक्ट्रोड व्हिच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. नाउ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड consists of a platinum electrode
कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर कोटिंग रहती है प्लैटिनम ब्लैक की, राइट? दैट इज फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड is dipped in an acidic solution. Acidic solution is typically that of hydrochloric acid. And pure hydrogen gas is bubbled through it. अभी हम next slide में इसका construction देखेंगे. So there it will be very clear to you. So basically a standard hydrogen electrode consists of a platinum electrode जिसके ऊपर कोटिंग है platinum black की, और इस इलेक्ट्रोड को हमने डिप कर दिया है एसिडिक सॉल्यूशन में जिसकी मोलैरिटी हमने ली है 1 मोलर, और इसके थ्रू हम पास करते हैं हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार। ये देखो, ये बेसिकली एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, राइट, जिसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम को हमने कोट कर दिया है। ये जो पूरा आप देख रहे हो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये एक इसके एंड पर एक फॉइल है जिसके ऊपर कोटिंग है प्लैटिनम की। इसको एक हमने ग्लास ट्यूब में डाला है और ग्लास ट्यूब के थ्रू यहां ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार, और इस पूरे सेटअप को हमने डिप कर दिया है एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो कि एक एसिडिक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी हमने ली है 1 मोलर। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो सकता है। तो इस जो एसिडिक सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी हमने रखी है 1 मोलर। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मेन चीज जो याद रखने की है इसके अंदर कि जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। जो हम गैस पास कर रहे हैं वो भी एट 1 बार पास कर रहे हैं। अगर आपको याद है मैंने बोला था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड व्हेन concentration of all species involved is unity. Therefore, that is the reason why we are taking everything at unity. Pressure of gas at 1 bar, concentration of solution at 1 molar. And by convention, we have assumed that the electrode potential of standard hydrogen electrode is 0. ये जो इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है शी, SHE, शी, इट इज असाइंड अ 0 पोटेंशियल, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना असाइन कर दिया हमने 0 एट ऑल टेम्परेचर। और ये जो हमने 0 पोटेंशियल असाइन किया है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिएक्शन कि यहां पर हाइड्रोजन आयन न्यूट्रलाइज हो रहा है बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। तो 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। तो दिस इज द अंडरलाइंग रिएक्शन फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी हैव अज्यूम्ड टू बी 0 एट ऑल टेम्परेचर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज 0। क्लियर है इतना? Now let's see. So according to convention, standard electrode potential of She is taken as 0 and all the electrode potentials are expressed with reference to She. इसका क्या मतलब हुआ? देखो हमने बोला She का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 0। ये जो मैंने सिंबल लिखा E और ऊपर 0 उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी दैट इज टेकन एज 0। एंड लेट्स से आई टेल यू दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शी का 0 है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट है। अब पहले ही मैंने बोल दिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम बोल रहे हैं तो इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्लियरली रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा हो गया? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सो दैट बेसिकली मींस कि अगर लेट्स से जिंक मेटल रिएक्ट करता है
विथ सम एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसमें H प्लस आयंस है। सो लेट्स से जिंक इज रिएक्टिंग विथ some solution which contains H plus ion, let's say H2SO4, right? Now we know this is a redox reaction. Reduction potential किसका ज्यादा है? She का, और reduction potential जिंक का कम है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब जिंक रिड्यूस नहीं होगा, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। Therefore we see that it forms ZnSO4 plus H2, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, तो क्लियरली दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। समझ में आया? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम था एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जब भी हाइड्रोजन आयन और जिंक का रिएक्शन हो रहा होगा, which will typically happen when we are reacting or treating zinc with an acidic solution, zinc will undergo oxidation. Therefore, zinc reacts with acid to displace or liberate hydrogen gas. Right? दूसरा एग्जांपल किसका ले हम? दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉपर का। ना कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, that is positive approximately 0.34 volt. Now इसका मतलब हुआ कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, हाइड्रोजन का तो 0 था, तो therefore ये जो रिएक्शन है Cu प्लस H2SO4, इस रिएक्शन में ये रिएक्शन नहीं होता और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। क्लियर है? समझ में आया? तो वॉट एवर यू हैड स्टडीड इन 10th क्लास, नाउ यू कैन लुक एट दैट विद अ न्यू अंडरस्टैंडिंग और फ्रेश अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है? सो देयरफॉर जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, यानी पॉजिटिव है, दे विल बी एबल टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन, और जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, they will not be able to liberate hydrogen from acidic solution. And this is a very basic which is the basis for activity series of metal which you have studied in 10th class. जो activity series है metal की, वो भी किस पर based है? That is based on electrode potential. Clear है सब कुछ? Okay. Now let's move ahead. So we have seen that all electrode potential are expressed with reference to She. Now we cannot measure electrode potential, but what we can definitely measure is potential difference. So therefore what we will do is we will construct a cell with She as one electrode. मतलब हमने एक गैल्वेनिक सेल बनाया जिसमें She एक इलेक्ट्रोड हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोड लेट्स से जिस भी मेटल का मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है वो हो जाएगा। राइट? देखो एक्सप्लेन करता हूं फिर से। लेट्स से वी कंस्ट्रक्ट अ सेल। मान लो मेरे को जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो ये मैंने एक जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया यहां पे, और दूसरा क्या लिया मैंने? ये है मेरा She, और फिर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया और यहां पर लगा दिया एक लेट से वोल्ट मीटर। राइट? और ये दोनों कनेक्ट हो गए सॉल्ट ब्रिज से। अब जब ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे। राइट? अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? एक तरीके से E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड क्या है? She, तो वो हो गया 0 माइनस E एनोड यानी माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस है EMF मेजर किया यूजिंग She एज द इलेक्ट्रोड,
ये बेसिकली क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड विच वी took. In this case, we took zinc. So therefore, we will be able to measure EMF of the cell, which will be same as electrode potential of the second half cell. Clear है? Clear है ना? तो मेन पॉइंट क्या है कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन मेजर इज पोटेंशियल डिफरेंस. So we construct a galvanic cell which shears one electrode. We now measure the EMF of this cell. EMF is equal to difference in electrode potential of two half cells. ये हमने पढ़ लिया है. अब क्योंकि one of the half cell she है जिसका electrode potential 0 है, तो EMF becomes equal to the standard electrode potential of the second half cell. So this is how we measure electrode potential. Clear है? Let's look at a galvanic cell जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोड है आपका निकल का, and the second electrode we are taking it as she. Now ये galvanic cell हम सेटअप करते हैं. We have connected a voltmeter and we measure the potential difference, and the potential difference was measured to be 0.76 volt. Now we know that EMF of the cell is equal to electrode potential of cathode minus electrode potential of anode. Now इसमें कैथोड क्या है? She. राइट हैंड साइड में क्या रहता है? कैथोड. So E cathode is 0. So EMF of the cell is equal to negative of electrode potential of anode. Right? So this is how we can measure the electrode potential. Clear है? Great. Now this is the table which I referred to in the earlier part of the presentation. Now this table basically gives you the reduction potential or the electrode potential of various reaction or various metals. सबसे बॉटम में देखो जो रिएक्शन दिया है Li plus getting reduced to Li. क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है तो सारे के सारे रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लिथियम के लिए रिडक्शन पोटेंशियल आया -3.05 वोल्ट, और ये है तुम्हारा शी हाइड्रोजन जिसके लिए है 0. मतलब लिथियम विल हैव लीस्ट टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, वेरास इफ यू लुक एट फ्लोरीन उसका रिडक्शन पोटेंशियल है 2.87. मतलब इट हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन. पढ़ा हुआ हमने 11th में कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? That is being shown over here. It will easily undergo reduction, whereas lithium will not undergo reduction. It will easily undergo oxidation. Okay. Similarly, let's look at zinc. ये zinc का reduction potential 0.76 volt जो कि हमने डिस्कस किया था अभी. Now let's look at copper. ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट. राइट? तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं दे विल नॉट बी एबल टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन. नीचे वाले सब लिबरेट कर देंगे. और जब हम कोई भी गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, लेट्स से मैंने जिंक और कॉपर को लेकर गैल्वेनिक सेल बनाया जो कि डेनियल सेल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? कॉपर का पॉजिटिव है 0.34 और जिंक का -0.76. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा. तो हमने डेनियल सेल में देखा था कैथोड किस चीज का था? कॉपर का, क्योंकि कॉपर रिड्यूस होगा तो दैट विल फॉर्म रिडक्शन हाफ सेल. और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम था कॉपर से, देयरफॉर इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म्स एनोड. तो अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो हम बता सकते हैं कि अगर हम गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें से कैथोड क्या होगा और एनोड क्या होगा. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. क्लियर है ना? हमें क्या करना है? हमें कंपेयर करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को. जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, यानी वो रिडक्शन हाफ सेल बनाएगा, यानी वो कैथोड की तरह काम करेगा. जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज होगा और वो एनोड फॉर्म करेगा. लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स.
ये है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, ये कॉपर का 0.34 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम है, नेगेटिव है, कॉपर का पॉजिटिव है। सो कॉपर विल अंडरगो रिडक्शन, जिंक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो देयरफॉर ये वाला रिएक्शन फीजिबल है। क्यों फीजिबल है? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है 0 से +2, और कॉपर सल्फेट के अंदर देखेंगे तो यहां पर चेंज हो रही है +2 से 0, यानी कॉपर रिड्यूस हो रहा है और जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, विच इज करेक्ट बिकॉज कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, सो नाउ लेट्स, so what we can say is that this particular reaction is feasible या spontaneous. Now अगर मैं galvanic cell construct करता हूं using zinc as one electrode and copper as another electrode, zinc will act as anode क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होगा, copper will act as cathode क्योंकि वो रिड्यूस होगा, और EMF of the cell पॉजिटिव होगा 0.34 E cathode minus E anode। तो अगर मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया जिसमें मैंने जिंक को एनोड बनाया और कॉपर को कैथोड बनाया, तो उसका ईएमएफ कितना आया? पॉजिटिव 1.10 वोल्ट। रिमेंबर, ये इक्वेशन याद रखो, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अगर ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो अंडरलाइंग रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, वो फीजिबल है। ओके, और हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था galvanic cell involves spontaneous redox reaction. Now let's look at same example. Now this time we are talking about reverse reaction, copper plus zinc sulfate. Now क्या ये रिएक्शन feasible है? ऊपर इस रिएक्शन में जिंक क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है +2 से 0, और कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +2। तो अगर मैं गैल्वेनिक सेल बनाता हूं इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्योंकि जिंक रिड्यूस हो रहा है तो उसको मेरे को बनाना पड़ेगा कैथोड, और कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको मेरे को बनाना पड़ेगा एनोड। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड यानी ई कैथोड क्या था इस बार? जिंक, यानी -0.76। तो -0.76 -0.34 which will give me EMF as -1.10 वोल्ट। तो EMF नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये अंडरलाइंग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फीजिबल नहीं है। क्लियर है? ये मेरे को पहले भी ऑब्वियस था यहां पर भी कि जिंक वाज गेटिंग रिड्यूस्ड जबकि कॉपर हैड ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल। मैं यहां पर भी बोल सकता था कि ये रिएक्शन इनफीजिबल है, बट आई वांटेड टू शो यू कि अगर आप सेल कंस्ट्रक्ट करते हो फॉर अ गिवन रिडॉक्स रिएक्शन और उसका ईएमएफ पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन फीजिबल है या स्पॉन्टेनियस है, और वो अगर नेगेटिव आता है तो रिएक्शन फीजिबल नहीं है और स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है, सो इफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन 0, अंडरलाइंग रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर? ओके, so this is what I wanted to cover in today's lecture. We have taken a detailed look at electrode potential, and we looked at the convention which says that electrode potential stands for reduction potential. तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना इजीली वो मेटल रिड्यूस होगा, राइट? और फिर हमने देखा था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है। Then we looked at how to measure electrode potential. We know that potential difference can be measured. तो हम लोग एक She electrode by convention we devised a electrode which we called as standard hydrogen electrode या She, और उसका पोटेंशियल हमने असाइन कर दिया 0। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये कन्वेंशन है, आर्बिट्रली हमने असाइन कर दिया 0।
और अब हम सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग शी एज वन इलेक्ट्रोड, और जिस भी मेटल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है उसको दूसरा इलेक्ट्रोड बना देते हैं, और जो ईएमएफ ऑफ द सेल आता है वो बेसिकली विल गिव यू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रोड, राइट? एंड देन वी लुक दैट हाउ टू infer whether a particular reaction is feasible or spontaneous or not. तो इसके लिए हम या तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल, और फिर देख सकते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा है वो रिएक्शन में रिड्यूस होना चाहिए, ओके? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूस होना चाहिए. दैट वाज वन वे. सेकेंड वे वाज जो भी हमें रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है उसमें जो रिड्यूस हो रहा है उसको हम कैथोड बना लें, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम एनोड बना लें, और ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लें. अगर ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फीजिबल है. अगर ईएमएफ ऑफ द सेल नेगेटिव आता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉट फीजिबल है. क्लियर है? आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा. पे क्लोज अटेंशन टू whatever I have said in this particular lecture, because once the concept of electrode potential and reduction potential is clear to you and it is clear how to measure EMF of the cell, the remaining numerical problems in this chapter will be very, very easy. When we learn about Nernst equation, etc., these are some things which will be taken as granted that you know these things. So make sure that this concept of electrode potential is extremely clear to you. In the next lecture, we will look at Nernst equation, which basically talks about variations of EMF of cell with concentration and temperature. So till that time, please go through this video, and I hope you will find it interesting and exciting. So goodbye from now till we meet for the next lecture.